ایک کتاب، ایک تصویر اور ایک ایسا راز جس نے شہزادے کو سلطنت سے جنگل تک کھینچ لیا۔ کیا وہ اپنی محبت کو پا سکے گا یا ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں گم ہو جائے گا؟ سورج کی نرم روشنی نیلے آسماں کو سنہری چادر میں لپیٹ رہی ہے۔ محل کی بلند و بالا دیواریں روشنی سے جگمگا رہی ہیں۔ فضا میں پرندوں کی چہچہاہٹ ہے اور درباری خادموں کی چہل پہل سنائی دیتی ہے۔ یہ داستان ہے ایک ایسے شہزادے کی جس کی تقدیر اندھیروں میں لکھی گئی تھی، لیکن اس نے اسے روشن کرنے کی قسم کھائی تھی۔ سلطنت نورستان، جہاں انصاف، محبت اور علم کی حکمرانی تھی، اور اس کا نیک دل بادشاہ سلطان آریان۔ شاہی کمرے میں شہزادہ اورحان کتابوں میں کھویا ہوا ہے۔ کتابوں کے درمیان ایک موٹی گرد آلود کتاب اس کی توجہ کھینچتی ہے۔ شہزادہ اورحان حیرت سے کہتا ہے، یہ کیا ہے؟ کتاب کے اندر ایک خوبصورت تصویر ہے، ایک لڑکی جس کے سنہری بال دھوپ میں چمک رہے ہیں۔ شہزادہ تصویر کو حیرت سے دیکھتا ہے۔ کون ہے یہ دوشیزہ؟ اس کی آنکھوں میں کیسا دکھ ہے، اور یہ سنہرے بال جیسے سورج نے خود انہیں چھوا ہو۔ وہ تیزی سے کتاب لے کر محل کے دانا بزرگ فقیر یاسین کے پاس جاتا ہے۔ محل کی پراسرار لائبریری، جہاں فقیر یاسین سفید داڑھی والا نیک بزرگ مراقبے میں بیٹھا ہے۔ استاد محترم، میں نے یہ تصویر دیکھی ہے، یہ کوئی افسانہ ہے یا حقیقت؟ یہ تصویر ایک حقیقت ہے شہزادے۔ وہ دوشیزہ نیلوفر ایک پراسرار جنگل میں قید ہے۔ کئی بادشاہوں، شہزادوں اور سورماؤں نے اسے تلاش کیا، لیکن واپس نہ آئے۔ کیا وہ زندہ ہے؟ کس نے اسے قید کیا؟ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسا جنگل ہے جہاں عقل ہار جاتی ہے اور نیت آزمائی جاتی ہے۔ وہاں کی مخلوق انسانوں جیسی نہیں، اور ہر راہ میں ایک راز چھپا ہے۔ شہزادہ اورحان کچھ دیر چپ رہتا ہے، پھر نظریں استاد کی آنکھوں میں ڈال کر کہتا ہے، میں جاؤں گا نیلوفر کو آزاد کروانے۔ شاہی دربار، دن کا وقت، سلطان آریان تخت پر بیٹھے ہیں، وزراء اور محافظ ارد گرد موجود ہیں۔ شہزادہ اورحان قدموں کی مضبوطی کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ ابا حضور، میں اجازت چاہتا ہوں۔ ایک ایسی مہم پر جا رہا ہوں جو آسان نہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ وہی میری قسمت کا فیصلہ کرے گی۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو اورحان؟ تم جانتے ہو اس جنگل میں جانے کا کیا مطلب ہے؟ میں اپنی روح کی آواز سن رہا ہوں ابا جان۔ اگر نیلوفر قید ہے تو اس کا دکھ بھی میرا دکھ ہے، اور اگر میں کچھ نہ کر سکا تو شاید کبھی خود کو معاف نہ کر سکوں۔ اگر جانا چاہتے ہو تو فقیر یاسین سے 3 امانتیں لے کر جانا۔ وہ تمہیں تمہاری راہ کے 3 اشارے دے گا، لیکن یاد رکھو، ہر اشارہ تمہیں آزمائے گا، ہر قدم پر تمہیں کچھ نہ کچھ کھونا پڑے گا۔ شہزادہ سر جھکا کر اجازت لیتا ہے۔ یوں شروع ہوئی شہزادہ اورحان کی وہ کہانی جو نہ صرف اس کے دل کو آزمانے والی تھی، بلکہ پورے نورستان کے نصیب کو بدل دینے والی تھی۔ محل کے عقب میں واقع صدیوں پرانی لائبریری، جہاں وقت رک سا گیا ہے۔ فقیر یاسین ایک بڑی پراسرار کتاب کھولے بیٹھا ہے۔ کمرے میں سرخ روشنی اور خاموشی ہے۔ تو تم نے فیصلہ کر لیا اورحان؟ جی استاد، میرے دل میں ایک روشنی جل چکی ہے۔ تو پھر سنو میرے شہزادے، یہ سفر تمہیں جسمانی نہیں، روحانی آزمائشوں میں بھی ڈالے گا۔ وہ کتاب سے ایک بند لفافہ نکالتا ہے، پھر ایک خالی کٹورا، اور آخر میں ایک مٹی کی مہر۔ یہ ہیں 3 راز، 3 امانتیں۔ پہلی، خاموشی کا پیغام۔ دوسری، سچ کی کٹوری۔ تیسری، نیت کی مہر۔ ان کا مطلب؟ پہلا راز تمہیں بتائے گا کہ کب بولنا اور کب خاموش رہنا تمہاری زندگی کا فیصلہ کرے گا۔ دوسرا راز تمہیں دکھائے گا کہ سچ کڑوا بھی ہو سکتا ہے، مگر وہی نجات ہے۔ تیسرا راز وہ سب سے نازک ہے۔ نیت کی مہر صرف سچے دل والوں کے ہاتھ میں سلامت رہتی ہے، جھوٹے دلوں کو یہ مٹی میں ملا دیتی ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی بوتل اور کاغذ کا ٹکڑا شہزادے کو دیتا ہے۔ اس بوتل کو تم صرف اس وقت کھولنا جب تمہیں لگے کہ کوئی تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، اور اس کاغذ پر صرف وہ نام لکھا جا سکے گا جو سچے دل سے تمہیں چاہے گا۔ شہزادہ اورحان اپنے گھوڑے پر سوار ہے۔ وزیر سلطنت، سپاہی اور کچھ رعایا اسے الوداع کہنے آئے ہیں۔ سلطان آریان دور کھڑے سب دیکھ رہے ہیں، آنکھوں میں فخر اور آنسو دونوں لیے۔
मेरा बेटा वो आज बच्चा नहीं रहा, वो आज मर्द बन गया है। शहज़ादा झुककर अपने बाप को सलाम करता है। सुल्तान आर्यान सर हिलाते हैं। याद रखो शहज़ादे, हर गुमराही का आगाज़ एक झूठ से होता है और हर सच का रास्ता कुर्बानी से। मैं हर इम्तिहान के लिए तैयार हूँ उस्ताद। और घोड़ा तेज़ी से निकलता है, धूल उड़ती है, मंजर बदल जाता है। रात का वक्त, चांदनी छन छन कर ज़मीन पर गिर रही है। एक पुराना दरवाज़ा जिस पर इंसानी आवाज़ों जैसी सरगोशियाँ सुनाई दे रही हैं। दरवाज़े का निगहबान बोला, वापस चले जाओ मुसाफिर, यहाँ से आगे हर चीज़ तुम्हारी नज़र का धोखा हो सकती है। तुम्हारी सांस, तुम्हारा दिल, यहाँ कुछ भी तुम्हारा नहीं रहेगा। अगर मेरी सांस रुक जाए तो भी मैं नीलोफर को ढूंढने जाऊंगा। दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता है, एक भयानक आवाज़ के साथ। एक शहज़ादा, 3 राज और एक अंधेरी आजमाइशी दुनिया। क्या वो सुनहरी बालों वाली नीलोफर तक पहुंच सकेगा या वो खुद गुम हो जाएगा एक ऐसी जगह जहां अपनी पहचान भी मिट जाया करती है। शहज़ादा ओरहान एक घने तारीक जंगल में दाखिल हो रहा है। दरख्तों की शाखें जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रही हों। हवा में अजीब सी सरगोशियाँ गूंज रही हैं। ये कोई आम जंगल ना था, ये जुल्मोरा का जंगल था, जहाँ हर दरख्त में एक पुराना राज छुपा था और हर साया किसी भटकी हुई रूह का मज़ार था। मेरे दिल में खौफ है, मगर नीलोफर की तस्वीर आंखों के सामने है। नहीं नहीं, मुझे रुकना नहीं है। अचानक घोड़ा रुक जाता है, कान खड़े हो जाते हैं और सामने से एक खूबसूरत हिरन नमूदार होता है, मगर उसकी आंखें नीली और इंसानों जैसी हैं। शहज़ादे, क्या तुम मोहब्बत के लिए अपनी जान भी दे सकते हो? मोहब्बत के लिए जान देना आसान है, मगर वफादारी निभाना मुश्किल। हिरन आहिस्ता आहिस्ता पीछे मुड़ता है और जंगल के अंदर एक रोशनी की लकीर सी बनती जाती है। ओरहान घोड़े समेत इस रोशनी के पीछे चल पड़ता है। जंगल के बीच एक तिलिस्मी झील, चांदनी में चमकती हुई पानी के अंदर से किसी की आवाज़ आती है। क्या तुम मुझे मेरी कैद से आज़ाद कर सकते हो ओरहान? शहज़ादा हैरान होकर इधर उधर देखता है। पानी की तह में एक धुंधली सी तस्वीर बनती है। नीलोफर एक कैद में, आंखों में नमी, बाल सुनहरी और बिखरे हुए, होंठों पर एक सब्र भरा सवाल। नीलोफर, कहाँ हो तुम? मुझे रास्ता दिखाओ। अचानक एक ज़ोरदार तूफ़ानी आवाज़, पानी उछलकर आसमान तक जाता है और शहज़ादा बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। ख्वाब की दुनिया। शहज़ादा एक सुनहरी महल में खड़ा है। नीलोफर सामने है, मुस्कुरा रही है, मगर आंखों में उदासी है। ओरहान, अगर तुम सच बोलने की कीमत अदा कर सकते हो तो मैं तुम्हारी हो सकती हूँ। मैंने सच के लिए सल्तनत, आराम और अपनी शिनाख्त छोड़ दी। अब तुमसे बढ़कर कुछ नहीं। तो फिर जागो, आजमाइश अभी बाकी है। शहज़ादा आंख खोलता है। वो झील के किनारे लेटा है, हाथ में वही खाकी बोतल जो फ़कीर यासीन ने दी थी। वो आहिस्ता से उसे खोलता है। पहला धोखा हमेशा ख्वाब की शक्ल में आता है। हकीकत के कदम सुने जा सकते हैं, ख्वाब के नहीं। अगर तुमने अपने दिल को सच में रखा है तो नीलोफर तक ज़रूर पहुंचोगे। एक वीरान पहाड़ी रास्ता। शहज़ादा ओरहान ज़ख्मी कदमों के साथ चलता जा रहा है। अचानक सामने एक रोशन सराय नमूदार होती है। रोशनी, खुशबू, साज़ो आवाज़। मुसाफिर को जब मंजिल करीब लगे तब धोखा सबसे मुहलक होता है। ये वो जगह थी जहाँ खुशबू जहर से महक रही थी और मुस्कुराहटें खंजर जैसी थीं। शहज़ादा दरवाज़ा खोलता है। अंदर एक खूबसूरत औरत जिसका लिबास चमकता हुआ और आंखें ख्वाब जैसी। वो उसे खुश आमदीद कहती है। शहज़ादा ओरहान, तुम्हारा ही इंतज़ार था। आराम करो, कहानी तुम्हारे लिए ही रखी गई है। तुम जानती हो मेरा नाम? नाम जानना कोई मोजज़ा नहीं, मगर ख्वाब की हकीकत पहचानना ज़रूर है। सराय के अंदर एक पुरअसरार हाल। शहज़ादा तन्हा बैठा है। रोशनी मदम होती है और एक साज बजने लगता है। नीलोफर जैसी आवाज़ उभरती है। ओरहान, अगर तुम मुझे पा ना सके तो क्या तुम खुद को खो दोगे? शहज़ादा जल्दी से उठता है, आवाज़ की सिमत दौड़ता है, मगर हर दरवाज़ा बंद होता जाता है। दीवारें बदलती हैं, चेहरे मुस्कुराते हैं और आंखें जलने लगती हैं।
ये कैसा धोखा है? मैं तुमसे मिलने आया था और अब हर चीज झूठ लगती है। अचानक एक बूढ़ा खादम नमूदार होता है। इसका चेहरा जला हुआ, एक आंख बंद। वो आहिस्ता से शहजादे के करीब आता है। ये सिराए उनके लिए है जो दिल से कमज़ोर हों। अगर तुमने एक भी झूठ बोला या दिल में लालच रखा तो तुम भी पत्थर बन जाओगे, उन मुजस्मों की तरह। शहजादा चौंक कर देखता है। दीवारों पर मुजस्मे नहीं बल्कि इंसान हैं जो खौफ, धोखा या लालच के सबब साकत हो चुके हैं। सच्चाई सिर्फ दिल में होती है, ज़बान पर नहीं। अगर नीलोफर तुम्हारे लिए ख्वाब है तो उसे पाने के लिए जागना ज़रूरी है। शहजादा आंखें बंद करके दुआ करता है। उसके दिल से आवाज़ निकलती है, या अल्लाह, मुझे झूठ, लालच, फ़रेब और ख्वाहिश की आग से बचा। मुझे सच के रास्ते पर रख, चाहे वो कितना ही दर्दनाक क्यों ना हो। एक लम्हे में सारा माहौल बदल जाता है। सराय मिट्टी में बदलती है, औरत गायब हो जाती है और एक अंधेरी सुनसान राह सामने खुलती है। कातल सराय जल गई, मगर एक सबक जिंदा रहा कि जो शख्स सच की राह पर चलता है उसे रास्ता खुद बुला लेता है। एक वीरान वादी। सुबह के वक्त शहजादा ओरहान सराय के खंडरात से निकलकर एक जंगल के किनारे पहुंचता है जहां धुंध हर चीज़ को छुपा रही है। एक ज़बरदस्त आवाज़ गूंजती है। उसी को मिलती है रोशनी जो अंधेरे से ना डरता हो। आगे कदम बढ़ाने वाले, क्या तुम सच के लिए अपनी अना को कुर्बान कर सकते हो? धुंध के बीच एक जादूगर नमूदार होता है। लंबी दाढ़ी, आंखों में रोशनी, हाथ में चमकता हुआ असा। कौन हो तुम? क्या तुम नीलोफर का पता जानते हो? मैं वो हूँ जो सवाल करता है, जवाब नहीं देता। 3 सवालात हैं मेरे पास, हर एक तुम्हारी रूह का इम्तिहान लेगा। अगर तुम नाकाम हो गए तो तुम्हारा नाम भी वक्त से मिट जाएगा। जादूगर शहजादे के गिर्द एक दायरा बनाता है। ज़मीन लर्जने लगती है। पहला सवाल, तुम एक ऐसे शख्स को देखते हो जो भूखा है, दूसरा जख्मी है, तीसरा तुम्हारा दुश्मन है। तुम्हारे पास सिर्फ एक नवाला है, तुम किसको दोगे? मैं उसे दूंगा जो ज़ख्मी है, क्योंकि भूखा कल खा सकता है। दुश्मन मेरे एहसान को जहर समझेगा, मगर ज़ख्मी को अभी मदद की ज़रूरत है। जादूगर मुस्कुराकर, एक दिल जो दर्द को पहचान ले वो सच से दूर नहीं। दूसरा सवाल, अगर तुम्हें 3 दरवाजे दिखाई दें, एक तुम्हें नीलोफर तक ले जाएगा, दूसरा तुम्हें बादशाहत देगा और तीसरा तुम्हें तुम्हारे वालिद की ज़िंदगी बचाने का वादा करता है, तो तुम कौन सा दरवाज़ा चुनोगे? मैं तीसरा दरवाज़ा चुनूँगा, क्योंकि अगर वालिद ना रहे तो बादशाहत खाली होगी, और अगर बाप की दुआ ना हो तो नीलोफर का साथ भी बेनूर होगा। तुम्हारे दिल में रोशनी बाकी है शहजादे। अब आखिरी सवाल, अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि नीलोफर दरअसल एक गुनाहगार की बेटी है, एक डाकू की जिसने कई जानें ली हैं, तो क्या तुम उससे फिर भी मोहब्बत करोगे या तुम अपनी शाही अजमत के लिए उसे छोड़ दोगे? एक तवील खामोशी। शहजादे की आंखें नम हो जाती हैं। मैं नीलोफर से मोहब्बत करता हूँ, ना कि उसके बाप के गुनाहों से। अगर वो पाक दिल है तो मैं उसका साथ ना छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा रिश्ता खून से नहीं किरदार से है। एक लम्हे में आसमान गरजता है, धुंध छटती है और जादूगर की आंखों में नमी आ जाती है। शहजादा ओरहान, तुमने 3 सवालात के वो जवाब दिए जो सिर्फ एक सच्चे आशिक और सच्चे इंसान के दिल से निकल सकते थे। अब आगे का रास्ता तुम्हारे लिए खुल चुका है, लेकिन याद रखना, सबसे कठिन इम्तिहान अभी बाकी है। जादूगर एक छोटा सा तोता शहजादे को देता है। ये तोता सिर्फ उस वक्त बोलेगा जब तुम झूठे होगे। ये तुम्हारे सच्चाई के साथी की सूरत है, लेकिन अगर तुम फरेब में आ गए तो ये तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। शहजादा तोते को कंधे पर बिठाता है, जादूगर गायब हो जाता है और सामने एक सुनहरी दरवाज़ा जाहिर होता है। सच के 3 दरवाजे खुल गए, मगर अब जो दरवाज़ा खुलेगा वो दिल के राजों को बरहना कर देगा। एक सुनहरी दरवाजे के पार अंधेरी सुरंग, कैद खाने की सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं। शहजादा ओरहान तोते को कंधे पर लिए एहतियात से नीचे उतरता है। कभी कभी रोशनी तक पहुँचने के लिए इंसान को अंधेरे के सबसे गहरे कुएं से गुजरना पड़ता है। कैद खाने की दीवारों पर मशलें लगी हैं, दीवारें गीली हैं। एक पुराना दरवाज़ा चिड़चिड़ाता है और एक आवाज़ आती है, अगर तुम मेरे लिए आए हो
तो जान लो मैं वो नहीं हूँ जिसके लिए तुमने सब कुछ छोड़ा। शहजादा दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल होता है। एक कमज़ोर मगर बावकार दोशीज़ा जंजीरों में जकड़ी हुई बैठी है। वही सुनहरी बाल मगर आंखों में खफा माजी। नीलोफर, मेरा नाम सुनकर तुम्हारी आवाज़ कांप रही है। क्या तुम जानते हो कि मैं एक कातिल की बेटी हूँ? नीलोफर माजी को याद करती है। बचपन में अपने जालिम बाप से छुपती हुई माँ की गोद में पनाह लेती है। मेरा बाप शाकर डाकू जंगल का वो दरिंदा था जिसने बादशाहत के ताजदारों को लूटा, मुसाफिरों का खून बहाया और मुझे कैद में रखा कि मैं कभी रोशनी ना देख सकूं। तो तुम यहाँ क्यों कैद हो अगर तुमने कुछ नहीं किया? क्योंकि मेरे बाप ने एक दिन शाही काफिले पर हमला किया और मैं वाहिद गवाह थी। मैंने खुद जाकर महल में सब कुछ बताया, अपने बाप को दुश्मनों के हवाले किया और बदले में कैद का इनाम पाया। तुमने अपने बाप को? कभी कभी सच इतना तल्ख होता है कि खून भी कुर्बान करना पड़ता है। मैं शाही जिंदगी नहीं, सिर्फ ज़मीर का सुकून चाहती थी। तोता जो शहजादे के कंधे पर है अब खामोशी से बोल उठता है। ये सच है, वो सच की बेटी है, डाकू की नहीं। शहजादे और हान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो झुककर नीलोफर की जंजीरों को तोड़ता है। अगर तुमने सच के लिए सब कुछ कुर्बान किया तो अब मैं अपना सब कुछ देकर तुम्हें आज़ाद करूंगा। चाहे पूरी दुनिया मेरा रास्ता रोके, मैं तुम्हें रोशनी में लेकर जाऊंगा। क्या तुम जानते हो बाहर तुम्हारी बादशाहत छीनने के लिए साजिशें तैयार हो चुकी हैं? तुम्हारे भाई वजीर सब तुम्हें मुर्दा समझ चुके हैं। तुम्हें जिंदा देखना उनके लिए खतरा बनेगा। अगर सच एक खतरा है तो मैं वो खतरा बनने को तैयार हूँ। शहजादा नीलोफर का हाथ थामे कैद खाने से निकलता है। दरवाजे पर जादूगर का तोता एक आखिरी सरगोशी के साथ गायब हो जाता है। मोहब्बत वही है जो जंजीरों को काट दे और सच वही है जो बादशाहत से ज़्यादा कीमती हो। लेकिन याद रखो, अब आखिरी इम्तिहान शुरू होने वाला है। महल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं। मोहब्बत और कुर्बानी की कहानी अब अपने आखिरी मोड़ पर है, मगर अंजाम वही जाने जिसने आगाज़ लिखा था। महल की फसीलों पर सुबह का उजाला फैल रहा है। शाही दरबार में वज़ीरों का हजूम है। हर चेहरा बेचैनी से भरा हुआ है। जब मोहब्बत सच्चाई के कंधे पर सवार होकर दरबार में आती है तो तख्त हिलने लगता है, ताज कांपने लगता है और चेहरों से नकाब गिरने लगते हैं। वज़ीर कमरुद्दीन एक काली चादर ओढ़े बादशाह आर्यान को महल के बाग में ले जाता है। वज़ीर कमरुद्दीन कहता है, बादशाह सलामत, आपका बेटा और हान कई महीने से लापता है। राया बेचैन है और सल्तनत को एक वारिस चाहिए। अब वक्त है तख्त खाली करार दिया जाए। और हान जिंदा हो या मुर्दा, मैं उसकी वापसी का इंतज़ार करूँगा। वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं, मेरी सल्तनत का ज़मीर है। उसी लम्हे महल के बड़े दरवाज़े पर एक नारा बुलंद होता है, शहज़ादा और हान वापस आ गया है। दरबार में खामोशी छा जाती है। हर आंख दरवाजे की जानब घूरती है। शहज़ादा और हान गर्द आलूद लिबास में नीलोफर का हाथ थामे महल के सहन में दाखिल होता है। कदमों में थकन है मगर आंखों में अज़्म की चमक है। मैं सिर्फ ज़िंदगी लेकर नहीं आया, सच, मोहब्बत और कुर्बानी की दास्तान भी साथ लाया हूँ। वज़ीर कमरुद्दीन, तुम एक डाकू की बेटी को महल में कैसे ला सकते हो? क्या सल्तनत के कानून को रोंदने आए हो? ये वही बेटी है जिसने अपने बाप को कानून के हवाले किया। ये वही लड़की है जिसने कैद में सच्चाई के चिराग को बुझने ना दिया। शाही दरबार में चामगोइयाँ शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग सर झुकाते हैं, कुछ खामोशी से नीलोफर को देखते हैं। बादशाह आर्यान तख्त से उठकर नीचे आता है, आहिस्ता आहिस्ता और हान की तरफ बढ़ता है, नम आँखों से। मेरे बेटे, तुमने वो कुछ किया जो बादशाह भी ना कर सके। तुमने तख्त की बजाय सच को चुना, तलवार की बजाय माफ़ी को और नफ़रत की बजाय मोहब्बत को। वो नीलोफर की तरफ मुतवज्जो होता है। बेटी, अगर तुम्हें इस महल में जगह ना दी जाए तो इस महल की दीवारें गिरी हुई हैं। आज से तुम हमारी बेटी हो और हान की शरीके हयात। वज़ीर कमरुद्दीन खामोशी से पीछे हटता है मगर शहज़ादा और हान उसकी तरफ देखता है। और तुम वज़ीर, जिन्होंने महल को साजिशों का मैदान बनाया, तुम्हें अब राया के सामने हिसाब देना होगा। मुहाफ़िज़ वज़ीर को गिरफ़्तार कर लेते हैं। राया तालियां बजाती है। शादी की बड़ी तकरीब हो रही है।
نیلوفر سفید لباس میں سنہری بالوں کے ساتھ شہزادی کی طرح محل میں داخل ہوتی ہے۔ شہزادہ اورحان اس کا ہاتھ تھامے کھڑا ہے، اور یوں ایک شہزادے کی تلاش صرف سنہری بالوں والی دوشیزہ تک محدود نہ رہی، بلکہ وہ ایک ایسا سچ، ایک ایسی محبت اور ایک ایسی قربانی لے کر آیا جو صدیوں تک کہانیوں میں زندہ رہے گی۔ یہ قصہ صرف عشق کا نہیں، یہ قصہ ہے روشنی کی فتح کا اور سچ کے تخت نشین ہونے کا۔